આજકાલ પરિણીત યુવકો એ યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવવા માટે અનેક કાવતરા કરતા હોય છે અને આ કાવતરાની અંદર એ યુવકો જે છે તે કોઈને કોઈ નકલી અધિકારી બનતા હોય છે. પરંતુ હવે એક વાત એ પણ સામે આવી છે કે ગાંધીનગરના એક સિનિયર આઈપીએસ અધિકારી પણ આ વાતથી વાકેફ નથી રહ્યા. એ પણ હવે એક યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી છે, લગ્નની લાલચ આપી છે અને તેની સાથે શારીરિક સંબંધ પણ બાંધ્યા છે. જો કે આખી વાતનો ભાંડો ફૂટ્યો છે અને ફરિયાદ જે છે તેની એક અરજી રાજ્યના ગૃહ રાજ્યમંત્રી સુધી પણ પહોંચાડવામાં આવી છે. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝરૂમને. આપની સાથે હું છું પ્રદીપ. રાજ્યના એક સિનિયર આઈપીએસ અધિકારી ઉપર દુષ્કર્મનો આરોપ જે છે તે લગાવવામાં આવ્યો છે અને આ વખતે દુષ્કર્મનો આરોપ લગાવનાર જે મહિલા જે છે તે એક વકીલ છે. આખી વાત જાણે એમ છે કે સિનિયર અધિકારી જે છે તે ભૂતકાળમાં ગાંધીનગર ખાતે ફરજ બજાવતા હતા અને આ જ્યારે ફરજ બજાવતા હતા તે દરમિયાન એક યુવતી સાથે તેમનો સંપર્ક થયો હતો. યુવતી સાથે જ્યારે સંપર્ક થયો ત્યારથી લગભગ 3 થી 4 વખત એ યુવતીને મુલાકાત થઈ હતી, કેમ કે યુવતી એ એડવોકેટ હતી અને કોઈને કોઈ સરકારી કામ માટે તેમની સાથે મુલાકાત થઈ હોઈ શકે. આ દરમિયાન અધિકારી દ્વારા યુવતીનો મોબાઈલ નંબર પણ મેળવવામાં આવ્યો અને યુવતી સાથે સતત સંપર્કમાં હતા. થોડા દિવસો વીત્યા ત્યારબાદ અધિકારી દ્વારા પોતાના પર્સનલ નંબર પરથી યુવતીના પર્સનલ નંબર ઉપર મેસેજ ચેટ જે છે તે શરૂ કરવામાં આવી. ગુડ મોર્નિંગ છે, ગુડ નાઇટ છે, કેમ છો, કેમ નથી, આ પ્રકારની ચર્ચાઓ વોટ્સઅપ મેસેજમાં ચાલતી હતી. ત્યારબાદ અચાનક જ અધિકારી દ્વારા એક દિવસ એવું કહેવામાં આવ્યું કે મારે આપને મળવું છે, થોડી પર્સનલ વાત કરવી છે. આ વાત કર્યા બાદ યુવતી પણ તેમને મળવા ગઈ અને ત્યાં જ્યારે મુલાકાત કરી ત્યારે અધિકારીએ એવું કીધું કે હું કુંવારો છું, મારે આપની સાથે લગ્ન કરવા છે. અને આ રીતે આખું એક પ્રપોઝલ જે છે તે મારવામાં આવ્યું હતું. પ્રપોઝલ માર્યા બાદ યુવતી જે છે તેને સાથે વાતચીત થઈ એટલે લગ્નની જ્યારે વાત કરી ત્યારે વાત બાદ અવારનવાર શારીરિક સંબંધ જે છે તે બાંધવામાં આવ્યા હતા. જોકે થોડા સમય બાદ અધિકારીનું ગાંધીનગર ખાતેથી બદલી થઈ ચૂકી હતી અને અન્ય જિલ્લાની અંદર ફરજ માટે જતા રહ્યા હતા. જોકે અન્ય જિલ્લાની અંદર ફરજ પર ગયા ત્યારથી ફરી વખત જ્યારે ગાંધીનગર ખાતે બદલી કરીને આવ્યા ત્યાં સુધી આ યુવતી સાથે કોઈપણ પ્રકારનો સંપર્ક રાખવામાં આવ્યો ન હતો. જોકે જ્યારે ફરી એક વખત ગાંધીનગર ખાતે તેઓ બદલી થઈને પાછા આવ્યા ત્યારે ફરી એક વખત યુવતી સાથે સંપર્ક જે છે તે સાધવાની શરૂઆત કરી અને આ જ્યારે સંપર્ક સાધવાની શરૂઆત કરી ત્યારે અચાનક જ એક દિવસ અધિકારી દ્વારા સોશિયલ મીડિયા ઉપર ફોટો મૂક્યો હશે અને ફોટોમાં લખ્યું હતું કે માય સન લખ્યું હતું અને દીકરાનો કોઈ નાનો ફોટો મૂક્યો હશે અને લખ્યું હશે એ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ થકી આખી આ પોસ્ટ મૂકીને. જોકે આ યુવતીએ આ ફોટો જોઈ ગયા બાદ આખો ભાંડો ફૂટ્યો કે આ અધિકારી તો પરિણીત છે, તો મારી સાથે પ્રેમ સંબંધનું રાખી અને મારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે જ એને મને કહ્યું હશે કે હું અપરિણીત છું. જોકે આખા મામલે વિવાદ થયો અને વિવાદ થતાની સાથે આઈપીએસ સાથે સંબંધ તોડી નાખ્યા હતા અને યુવતીના લગ્ન જે છે તે અન્ય યુવક સાથે થઈ ચૂક્યા હતા. લગ્ન બાદ પણ આઈપીએસ અધિકારી દ્વારા તેને દુષ્કર્મ માટે એટલે કે શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે દબાણ જે છે તે અવારનવાર કરવામાં આવતું હતું અને યુવતીને જે છે તે ફોન વારંવાર કરવામાં આવતો હતો. વારંવાર યુવતીને ફોન કરવામાં આવતો હતો, વારંવાર તેના ઉપર દબાણ આપવામાં આવતું હતું. આ દરમિયાન યુવતીએ કંટાળીને અગાઉ જે પ્રકારે દબાણ આવતું હતું એ પ્રકારે ફરી એકવાર જ્યારે દબાણની શરૂઆત કરવામાં આવી ત્યારે યુવતીએ કંટાળીને તેની સાથે સંબંધો ફરી એક વખત બાંધ્યા હતા જ્યારે અધિકારીની ગાંધીનગર ખાતે બદલી થઈ હતી ને યુવતી જે છે તે પરિણીત થઈ ગયા બાદની વાત છે. જોકે આખી ઘટના જે છે તે વર્ષ 2023ના નવરાત્રિ દરમિયાન આજે યુવતી જે છે તેના પતિને જાણ થઈ અને એ દરમિયાન યુવતીના ફોનમાં અધિકારીનો ફોન આવ્યો હતો અને ફોનમાં એવી વાતચીત થઈ હતી કે મળવા માટે દબાણ જે છે તે થઈ રહ્યું હતું. આ દબાણ જ્યારે થઈ રહ્યું હતું ત્યારે યુવતીનો પતિ તેની સાથે હતો અને આખી વાતની જાણ થઈ અને પરિવારને જે છે તે ઘટનાની જાણ કરી અને પરિવારને જ્યારે ઘટનાની જાણ કરી ત્યારે યુવતીએ આખી મામલે અને તેના પતિએ સાથે રહીને આખી આ ઘટના પીએમઓ, સીએમઓ, ડીજી ઓફિસ અને ગુજરાત સ્ટેટ પોલીસ કમ્પ્લેન્ટમાં
એક આધિકારિક રીતે એક મેલ પણ કર્યો છે. આ મેલની સાથે સાથે જ્યારે આખી આ ઘટનાની જાણ થઈ ત્યારે યુવતીના પતિ અને આઈપીએસ અધિકારી સાથે પણ જે છે તે ટેલિફોનિક વાતચીત થઈ હતી અને ખૂબ જ લાંબી વાતચીત થઈ. લગભગ 40 મિનિટ કરતાં વધારે એક આખી વાતચીત થઈ અને વાતચીતની અંદર ઘણી બધી વખત અધિકારીએ સ્વીકાર્યું કે મારાથી ભૂલ થઈ છે, આવું ના થવું જોઈતું, તો આ પ્રકારની વાતચીત છે. પરંતુ ખેર ન્યૂઝરૂમ એ ઓડિયો ક્લિપની પુષ્ટિ નથી કરતું, પરંતુ એ ઓડિયો ક્લિપ જે વાયરલ થઈ રહી છે એની અંદર શું કઈ ચર્ચા થઈ એકવાર એ પણ સાંભળી લો આપ. मेरी वाइफ को वहां पे 8 बजे 9 बजे तेरे घर पे अकेले पे जहाँ पे 11 माला का टावर है 11th फ्लोर पे, कौन से फ्लोर पे रहता है तू? आपको इन्होंने क्या बोला है? अरे आपको इन्होंने क्या बोला है? तेरा फिजिकल रिलेशनशिप है हेमा के साथ. आपको इन्होंने क्या बोला? तू क्रॉस वेरीफाई करना बंद कर दे मुझे. जी जी जी. समझ रहा है तू? तू हर्ष संघवी की कैबिन में आएगा, बराबर? तू वहां पे जवाब देना. ये तेरी ये जी ना जी हाँ जी पाजी है ना, ये सारी तेरी होम सेक्रेटरी हर्ष संघवी और सबके सामने तू जवाब देगा. तुझे ऐसे में जाने नहीं देने वाला. तू समझता क्या है कि मेरी जिंदगी खत्म करके तू चला जाएगा? नहीं भैया, अगर ऐसा है कि आपकी इस वजह से कोई प्रॉब्लम आई है. अरे मैं आई एम डिवोर्सिंग माई वाइफ. प्रॉब्लम आई है, तू सच बोलता. अभी भी तेरे अंदर इतना भी कुछ एक पते का भगवान भी बचा हो ना. मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आई एम रियली सॉरी अगर इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है तो. और आप ऐसा तूने मेरी वाइफ को क्यों ऐसा बोला कि तू मुझे मिलने आ? देखिए, वाई डिड यू फोर्स हर? तेरा तो कॉल रिकॉर्ड्स निकलेगा ना, मेरे पास है जियो के अंदर तेरा कॉल रिकॉर्ड्स. नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं. अबे धीरे, मुझे क्या बता कि ऐसा है कि अपन मिलते हैं और मिलने के बाद आपको मैं ना भाई सुन तो ना, तेरी कैडर से तेरी सीनियर ने ना मेरा क्लासमेट है, बराबर? तेरी तो पूरी जानकारी निकलवा ली है. तू ऐसा मत समझ कि तेरी जानकारी अभी तक नहीं निकली है, बराबर? मैं खुद तेरे घर पे कल आके गया हूँ. अड़ोस पड़ोस में सब कुछ तेरा, और तू मैं तेरा कच्चा चिट्ठा होम सेक्रेटरी और ना होम सेक्रेटरी और गृह मंत्री के सामने खुलेगा. तू वहां पे आंसर देगा मेरे सामने हाथ जोड़ के. तेरी जितनी भी गर्मी है ना ये सारी उतरने वाली है. दूसरों की बीवियों को परेशान करता है, रखेल बना के रखा है 2020 से तूने उसको. पूरा 2020 से पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकलेगा ना. वी आर गोइंग टू फाइल दी ऑफिशियल कंप्लेंट अगेंस्ट यू. आई एम सो सॉरी. और अरे सॉरी डाल तेरी बीवी की. नहीं ध्रुव जी, आप इस तरह से मत बोलिए. पर आपको मैं बता रहा हूँ ना, हम एक बार मिल लेते हैं. मैं तुझे क्यों मिलूं? तुझे मिलना हो ना तो हर्ष संघवी की कैबिन में आके अपन, मैं तुझे आई अश्योर यू मैं तुझे हर्ष संघवी की कैबिन में मिलूंगा. मैं दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. वहां पे तुझे जो बात बतानी हो ना वो सारी बात तू मुझे वहीं पे बताएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. वही कह रहा हूँ कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अपन वहाँ भी मिल सकते हैं. उसमें तो आप कहीं भी मेरे को बुला सकते हो तो मैं आ ही जाऊंगा. बट उससे पहले हम लोग मिल लेते हैं. मैं मिलता हूँ, आप मिलते हैं और हेमलता जी मिलते हैं. हम तीनों एक नहीं, तू मिलेगा. हेमलता का बाप आएगा ना तब तू मिलेगा. हेमलता के पापा के सामने मिलेगा तू. हम लोग मिल लेते. से पहले आते ही तुझे तू 5 तो मैं मारूंगा. नहीं वो तो जो भी है, पर हम पहले मिल लेते हैं. हम तीनों. तू नहीं, मैं कहीं पे तुझे नहीं मिलने वाला. हेमा का फादर आएगा, हेमा का फादर तुझे बुलाएगा और तब तू आके मिलेगा. साले तेरी तो मैं तेरी 7 पुश्ते याद रखेगी. ये वर्दी ना उतरवा दूं ना तो मेरा नाम ध्रुव नहीं. किस चीज की चर्बी है? नहीं कोई किस चीज की चर्बी है तुझे? आप मिलोगे तब पता. अरे तू मेरे बाप को जानता नहीं है, समझे? मैं ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि सब कुछ समेट लेगी. नहीं ना. अरे तूने यूपी का वो केस सुना था ना कि जहां पे जाना पड़ा, नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बराबर?
तू तैयारी कर ले, नाप ले, कट ले यहाँ से। नहीं, ध्रुव जी, मुझे मैं वही मुझे बोल रहा हूँ। तू इस शहर के अंदर मुझे तू नहीं दिखना चाहिए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि मैं सब चला जाऊंगा, वो कोई आपकी दिक्कत नहीं है। तू यहाँ पे आप आके मेरी बीवी को कॉल करता है? आप जैसे कहेंगे मैं वही हैं? ये मैं- ए तू बीवी, तूने मेरी बीवी को कॉल क्यों किया? तुझे पता है शी इज मैरिड वुमन, तो अब उसके बाद उसको कॉल क्यों किया? देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि हम एक बार मिलते हैं, आप एक बार तेरी जो कहेंगे- अगर तुझे मिलना हो ना तो तेरी बीवी को लेके आ, तेरी बीवी के सामने ये सब चिट्ठा खुल रहा है, उसको भी पहले से बता देना तू। देखो मैं वही कह रहा हूँ कि हम मिलते नहीं हैं। नहीं, पर मैं क्यों तुझे मिलूं? मैं मिलता हूँ आपको, मतलब मैं क्यों? आपके पास- तुझे मिलना है ना तो हेमलता का बाप आ रहा है, तब तू उसको मिलेगा। देखिए ध्रुव जी, आई एम सो सॉरी, मैं आपको बता सॉरी रहा हूँ, वॉरी आप- नहीं, तू हेमलता के बाप से मिलेगा। यू आर नॉट आप- गोइंग एनीवेयर, यू आर पिन पॉइंट। तू ना अभी ट्रैक हो रहा है, तेरा पूरा ना बैकग्राउंड निकल रहा है। तू ना सामने वाले को समझ मत, तुझसे तेरा सीनियर ना मेरे क्लासमेट थे कैडर में। नहीं तो वो आप तो सब कुछ जानती हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, एक बार हम मिलते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं। आप ऐसा देखिए, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मेरे को भी प्रॉब्लम हो जाएगी फालतू में, और इतना सब होगा, हमारे भी मतलब बीवी बच्चे हैं, ये सब प्रॉब्लम। अरे तेरी बीवी बच्चे है तो ये तेरे बीवी बच्चे के लक्षण है? नहीं बिल्कुल नहीं है ये तेरे बीवी बच्चे घर चलाने के लक्षण है? तूने तुझे जिसके साथ है, तुझे 4 रास्ते से उठा के आई डोंट गिव अ, तूने मेरी बीवी को कॉल करने की जुर्रत कैसे की? हाउ डेयर यू कॉल माई वाइफ? नहीं देखिए, मतलब मैं तो इनसे पहले ये जानते थे, इनका एक आध बार हॉस्पिटल वगैरह का कोई काम था, तब मैंने करवाया था, तब मेरा इन्फेक्शन था। और अभी शादी के बाद तो ये इस तरह से मिली नहीं है मेरे से। लास्ट टाइम आके तूने 2 बार नहीं ये ध्रुव जी, इसके लिए मैं बहुत ही सॉरी हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपको बता- तू किसको तू है? नहीं ध्रुव जी, वो नहीं हुआ तेरे है, वो तेरे नहीं। सामने कंप्लेन जा रही है, रिटर्न कंप्लेन रेडी है, रेडी। ध्रुव जी, हम एक बार तू मिलते हैं। इंक्वायरी के लिए रेडी हो जा, मीडिया के लिए रेडी हो जा, वाइफ के लिए रेडी हो जा, और तेरे जीवन के अहमदाबाद से भागने के लिए रेडी हो जा। जो पहली फ्लाइट, जो पहली ट्रेन, जो पहली बस मिले ना, अपने गांव चला जा जहां से आया था। मैं वही कह रहा हूँ ध्रुव जी, आप प्लीज मतलब मेरा मैं बिल्कुल प्लीज नहीं। तूने मेरे लिए प्लीज करा? तूने मेरे लिए सोचा? तूने मेरे लिए सोचा? मैं आपके लिए अच्छा ये बताइए, मैंने कभी इनको कांटेक्ट ही नहीं किया इसके बाद, और इन्होंने इस तरह से हमारी बातें हुई थी कि भाई हम ये है, ऐसा कुछ मैटर है, हम आएंगे आपके पास। मैं आपको बताऊं, आप जो सोच रहे हैं ना कि फिजिकल रिलेशनशिप, ये ना स्टोरी बनाना बंद कर दे। हेमा ने ये स्टोरी ना मुझसे बनाई थी, और ये बात अब कैंसल हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, समझा? नहीं ये ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, ये ऐसी कोई स्टोरी नहीं हुई है। जो सारे लोग पलट गए हैं भैया मेरे, ये सारी स्टोरियां ना तू अपने घर में रख। अभी कोई हमारा फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊं। मैं आपको सच भाई बता रहा हूं। केयूर भाई है ना, केयूर भाई की कोई ऐसी बात नहीं हुई। केयूर भाई मैंने केयूर भाई के घर जाके ये सारी बातें कर ली है, बराबर? हाँ, वो मुझे पता है, कॉन्फिडेंशियल पर मैं में मैंने केयूर भाई से सारी बातें कर ली है। तू चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर ले, आज से वर्दी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वो सब देखो, आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो गड़बड़ तो होगी मेरी लाइफ में, है ना? ये तो आपको पता ही है। अरे होगी नहीं, हो चुकी है ऑलरेडी। तेरे सीनियर्स तक ये बात पहुंच गई है। तू ऐसा मत सोच कि मैं ना ऊपर से आऊंगा। कहां से आऊंगा? ऊपर से ना। कोई इन बिटवीन कोई नहीं होगा, कोई समाधान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
इंक्वायरी बैठेगी, तू जो आंसर तुझे देना पड़ेगा तू दे, आराम से दे। तेरी बीवी को भी बता, तेरे बच्चों को भी बता, बराबर। तुझे तुझे शौक चढ़ा है ना, चर्बी चढ़ी है ना वर्दी की, तेरी गर्मी मैं उतारता हूँ। नहीं नहीं, तेरी कोई तेरी ऐसा पैंट में नहीं मैंने किया ना तो मेरा नाम नहीं, तेरे जैसे ना 50 आए 50 गए अहमदाबाद में। नहीं, बिल्कुल। पर आपको मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपसे मिलता हूँ। अरे आपको तू जो भी मिलने, गलतफहमी है ना, तू हम क्यों, दूर करते हैं। मैं तुझे मिलूं क्यों? तू चवन्नी का दलाल है, बराबर। तेरे तो कच्चे चिट्ठे सब कुछ पता है तेरा, तू कितनी दलाली करता है, तो तेरे जैसे चवन्नी को मैं मिलूं क्यों? मैं वही कह रहा हूँ कि अपनी गलत फहमी दूर करते हैं। अरे क्या, अबे अभी भी तू गलत फहमी बोले, अब तो सच बोल, वही मैं कह रहा हूँ। अब तो सच बोल। देखिए, मैं सच ही बोल रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि तू मैं ना, सच बोल तू रहा हूँ कि अबे तू तेरे घर पे रहे, मैं तो अभी आ रहा हूँ तुझे मारने के लिए। नहीं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। पर हम लोग मिलते हैं, गलत फहमी दूर क्यों करते हैं। भाई, मैं तुझे मिलना हो ना तो हेमलता का फादर, ही इज ऑन हिज वे टू अहमदाबाद, राइट। कल तेरे घर के नीचे से वीडियो कॉल करके मैंने हेमलता के फादर को सब कुछ बताया कि ये जगह पे आई थी, ये लोकेशन है, ये पिन पॉइंट्स है, ये सब कुछ मैंने डाउनलोड करके रखा है, मेरे पास सब कुछ स्क्रीनशॉट है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इन अ डिटेल। तेरी कॉल डिटेल्स भी जियो में से मैंने निकलवाई ली है कि कितने कितने बार तूने कॉल किए है, सब कुछ। अब तू उसके फादर को जवाब देना, क्योंकि मैंने उसके फादर को बोल दिया है कि भाई ये चीज मेरे घर में एक्सेप्टेबल है नहीं। और उसके फादर ना, वो भी कुछ छोटी हस्ती है नहीं, वो ही वॉज अ जनरल मैनेजर, राइट। तो वो तो तेरी ऐसी बम्बू लगाने वाले हैं, बराबर, कि तू सोच ही मत। ही इज लाइक अ मैडमैन, बराबर। तो तू अभी ना एवरीथिंग अगेंस्ट यू। हेमलता का बाप कौन है तू जानता है? नहीं, देखिए अब जानता है तेरी, मेरे को देखिए, ये तू मुझे तेरी बीवी को, तू तेरी बीवी को यस और नो में जवाब दे। देखो, मैं वही, यस और नो में जवाब दे अभी। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। ये आपको हम बताएं, पूरे जीवन में आप इतने लेने देने में भी जितने पहले हाथ कभी से हम मिले थे, बट वो काम के लिए मिले थे, आपको मैं बता। अरे काम तेरा काम क्या था मुझे पता है। न्यूज रूम गुजरात। नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूज़ रूम देखिए, गुजरात। आपने ये बताइए, मेरे बारे में आज तक कभी सुना भी नहीं होगा, मतलब आपको। अच्छा तो तेरा काम था तो तूने घर पे बुलाया, तेरे ऑफिस में क्यों नहीं बुलाया? नहीं, ये ऑफिस में एक बार आई थी, आपको बताऊं। अरे एक बार आई थी तो अभी क्यों तेरे घर पे तू घर का एड्रेस सबको हर एक को देता रहता है? न्यूज रूम घर का गुजरात। एड्रेस सब न्यूज़ रूम गुजरात। अबे तू ना फोन पे डायरेक्शन दे रहा था, इधर आ जा, इधर से लेफ्ट ले ले, इधर से राइट ले ले, इधर से लेफ्ट अंदर डाल दे, वहां पे डाल दे, पार्किंग में ले ले। वो तो इन्होंने बोला कि मैं इस काम सारे के सारे मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स है तेरे, नहीं, वो मैं तेरे सारे रिकॉर्डिंग्स है। मैं तो उसका हस्बैंड हूँ, मेरे पास सब कुछ 5 दिनों में सब कुछ ले लिया है। मैं तुम्हें इतना ही बोल रहा हूँ कि तू जितना शाना ज्यादा बनेगा उतना तेरे ज्यादा पड़ेंगे, बराबर। मैं कोई आप तू मैं जितना आपके शाना बोलने बनेगा, में देखिए, आप तू जो- जितना जल्दी सरेंडर करेगा उतनी जल्दी मैटर शुरू होगी, उतनी जल्दी मैटर खत्म होगी, बराबर। मैं तो- और मैं आपसे बोलती इतना हूँ, भी आप याद जो- रख ले, लॉयर्स एडवोकेट्स की मैं फौज लगा दूंगा। क्या देखो, लगाऊंगा? मैं- एडवोकेट्स की मैं फौज लगाऊंगा। सबसे पहले मैं मैंने आपको कह रहा हूँ- नानावटी सर को मैं कॉल कर रहा हूँ। किसको? नानावटी सर को मैं कॉल कर रहा हूँ। नानावटी सर, ही विल पर्सनली हैंडल दिस केस, बराबर। देखिए, ध्रुव जी, तू मैं आपसे कह रहा हूँ सबसे अच्छा और सबसे महंगा लॉयर तू हायर कर ले। तेरी जो भी पोस्ट है ना, बराबर, ये चली जाएगी। मेरी कोई इस बारे में औकात नहीं है, आपको बताऊं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। आप बताइए क्या करना है। मुझे कुछ करना ही नहीं है मैं तुझे इतना बोल रहा हूँ कि तुझे मिलना हो ना
तो ना हेमा के फादर आए तब मुझे मिलना, हेमा के फादर के सामने, क्योंकि हेमा के फादर ना तेरी के लिए तत्पर है वहां से, समझी? नहीं, मैं बस एक बात कह रहा हूँ ध्रुव जी, देखिए आप जो कहेंगे, आप कहेंगे कि मैं आवाज आऊँ, मैं आवाज आऊंगा। आप जैसे कहेंगे कि मुझे ये करना है, वो करना है, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा मुझे कुछ लेना देना है नहीं। तेरी सीसीटीवी जो फ्लैट के सीसीटीवी है ना, वो भी कल शाम को मैं आके लेके गया हूँ, बराबर? समझ रहा है तू? वो आपके समझ रहा है ना पास तू? वो आपके पास है सब कुछ। देखिए मैं बता रहा हूँ, बस मैं ये बोल तेरी रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स ध्रुव जी, है देखिए, हेमा के फोन में, तेरी रिकॉर्डिंग्स है कि तूने क्या क्या बात की, क्यों क्या फोर्स कर रहा था, आवो मिलो आवो मिलो, न्यूज रूम गुजरात। समझी? वो गुजरात। जी वो तो मैंने फोर्स कभी नहीं किया, बट मैं ये तुझे कह रहा मैं हूँ, के छोड़ूंगा क्या? देखिए पूरी जिंदगी ना तेरा लूंगा, पूरी जिंदगी तू किसी के ना लायक नहीं रहेगा। ध्रुव जी, देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि हाँ, हम बोल। लोग ना आराम से मिलते हैं, और आप जो क्यों कहेंगे भाई? वो करें। मैं तुझे क्यों मिलूं? तू है कौन? तेरी औकात क्या है चवन्नी के? न्यूज रूम गुजरात। नहीं, मेरी कोई तेरी औकात औकात नहीं है, क्या मैं है? इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए मैं आपसे खूब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट एक कर रहा महीने हूँ, के पैर बाद ना पकड़ तू रोड पे आएगा, एक महीने के बाद। आज से तेरी दिवाली ना, तेरी दिवाली मैं जेल में करवाऊंगा। के आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पैर पकड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मैटर प्लीज आप ये मैटर प्लीज नहीं, ये तो ये तो मेरी बीवी का ये पता चला कि तू इसको फोर्स कर करके वहां पे बुला रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसी तो तूने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल किया होगा? रूम गुजरात। नहीं, मैंने किसी को ऐसे अरे ब्लैकमेल नहीं किया अरे आपको। अरे तू जितना साना दिख रहा है ना, उतना है नहीं, समझा? नहीं, देखिए मैं आपको तो बताऊं, अरे एक तो है, तू मेरा मुंह मत खुलवा के किस कहाँ से तेरा यहाँ पे हुआ है, बराबर? औकात तो है नहीं तेरी जमादार बनने की। न्यूज रूम गुजरात। नहीं, वो आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, मैं आपसे वही हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि तू विनती हेमा के बाप और तेरी बीवी, इसके सामने तुझे जो विनतियां डालनी हो ना, डाल देना, बराबर? हेमा का बाप आएगा, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, बराबर? वरना ना तेरी ऑफिस या फिर तेरे घर पे हम पहुंच जाएंगे। नहीं, वो तू तो नहीं आप छूट रहा आसानी से। मैं तुझे ये बोल रहा हूँ, हर्ष संघवी के पास तू कुछ बीच में मत डाल। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सरेंडर कर दे सीधा, बराबर? सरेंडर। ऐसी तो तूने कितनी जिंदगियां लड़कियों की बिगाड़ दी होगी। मैंने सरेंडर कर दिया और तूने खाकी वर्दी पहन के लोगों की नहीं, मैं ऐसा नहीं है, पर मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि आप बताएं, जो जैसा करूंगा मैं, आप बताइए, आप बताइए, ऐसा करूंगा मैं। तू मुझे तेरी वाइफ और मेरे हेमा के जो फादर आएंगे ना, बराबर, उसके सामने तुझे जो तेरा पक्ष रखना है, बराबर, वो पक्ष तू रिटर्न में लिखेगा कि ये चीजें, ये तू मुझे एवरीथिंग मुझे अब रिटर्न में चाहिए तेरे से। और तेरी वाइफ के सामने, तेरी वाइफ बाहेंदरी लगी कि मेरा हस्बैंड ये चीज नहीं करने वाला, बराबर? और हेमा का फादर, मैं आपको बताऊं, मैं किसी से तू मुझे मिलने वाला साथ नहीं हूं, मुझे आज शाम को तू अहमदाबाद में नहीं चाहिए। न्यूज रूम गुजरात। नहीं, वो ठीक है, पर मैं तो चला जाऊंगा अहमदाबाद से, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बार आप तो मिल लीजिए एक बार मेरे से। अरे मैं क्यों मिलूं? मैं तुम्हें वो तो बोल रहा हूँ, मुझे मिलने का पर्पज ही क्यों है? मैं मिलूंगा सिर्फ और सिर्फ, मैं सिर्फ और सिर्फ हेमा के फादर के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर तुझे मिलूंगा, बराबर? देखिए बराबर ना? ऐसा मत कीजिए। वहां पे जो तुझे बातें करनी है ना, बराबर, ये शाहीबाग हेडक्वार्टर्स है ना, कमिश्नर ऑफिस, वहां पे आ जाना, या फिर डीए, तुझे तो तेरी तो अच्छी मरम्मत मैं करूंगा। नहीं, वो ठीक है, पर मैं वही कह रहा हूँ, आप एक बार मिल लीजिए मेरे से प्लीज। उनको बोलना कि हेमा ने तो बहुत कोशिश की थी छुपाने की, बहुत स्टोरियां बनाई थी, लेकिन आया नहीं। हेमा ने भाई बहुत स्टोरियां बनाई, बहुत छुपाने की कोशिश की, कुछ हुआ नहीं है। बट अभी तेरा कच्चा चिट्ठा खुल गया है। हेमा का रिटर्न स्टेटमेंट पड़ा है,
हाँ वो पड़ा होगा, पर ध्रुव जी मैं वही कह रहा हूँ, आप एक बार मेरे से मिल लीजिए, मैं प्लीज आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज जीजू की स्टोरी भी कैंसिल हो गई। प्लीज ध्रुव जी। अरे तेरी जीजू की स्टोरी भी कैंसिल हो गई। गुजरात मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तू कि आप रिक्वेस्ट एक मत बार कर, तू रिक्वेस्ट मत कर, मेरा न्यूज रूम जा गुजरात प्लीज आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, चलेगा। आपके पैरों में पड़ूंगा, आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए प्लीज। भी मुझे ना, मैं तुम्हें सीधी सीधी मैं बात बोल रहा हूँ। तू हेमा का पापा आए, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम मेरा पहले कॉल में एक रिंग भी नहीं जानी चाहिए। और अभी तू ऑफिस नहीं जाएगा, छुट्टी लेके अहमदाबाद से, मुझे तू अहमदाबाद में नहीं दिखना चाहिए, कट ले। तो मैं सबसे पहले मैं जा रहा हूँ तेरी ऑफिस। अभी तेरी ऑफिस में इतना हंगामा करूंगा ना, बराबर। तूने मेरी बीवी का कॉल किया है, तू किसी को कॉल करने के लायक नहीं रहेगा। नहीं वो मैं तू समझ गया, हाथ मैं में इसलिए कह फोन रहा हूँ। उठाते हुए डरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे से मिल लीजिए। मैं प्लीज तुझसे नहीं मिलूंगा। मैं तुझे पुलिस थाने में, कोर्ट के अंदर, लॉयर के पास, या फिर हर्ष संघवी के पास, इस जगहों में से एक जगह पे तुझे मिलूंगा, बराबर। और तेरी बम्बुल भगवान भी नीचे आए ना, भगवान, बराबर, तो भी वो नहीं, क्योंकि तेरा पाप का घड़ा भर चुका है, तू गलत जगह पे फंस गया है। प्लीज ध्रुव जी देखिए ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे आज मुझे को एक बार मौका दे दीजिए। आज का मुझे को तेरा कोई मौका, तू ऑफिस नहीं जा रहा है? नहीं प्लीज आप एक बार मौका दीजिए, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आपसे मिलने आ रहा हूँ, प्लीज आप जहाँ कहेंगे वहाँ मिलने आ जाता हूँ। हाँ, आप जहाँ गए, तू तो पुलिस वाला है, बराबर, तू तो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ, है? नहीं हाँ, एक क्राइम छुपाने के लिए डबल क्राइम है। तेरी तो क्रिमिनल मेंटालिटी ही है। लड़की को ब्लैकमेल करके तूने मेरी वाइफ को ब्लैकमेल किया है कि तू यहाँ पे नहीं आएगी, बराबर, तो तेरे साथ ये होगा, सब कुछ। नहीं ऐसा कोई मैंने ब्लैकमेल नहीं किया, मैं ध्रुव जी वही कह रहा हूँ, आप एक बार मेरे को आपसे मिलने का मौका दीजिए ना प्लीज। हेमा ने मुझे क्या बोला है कि तेरे मोबाइल में इसके हेमा के पिक्चर्स तूने मॉर्फ करके रखे, और बोल रहा है कि ये ना मैं वेबसाइट पे लीक कर दूंगा अगर तू नहीं आई तो। नहीं वो मेरे पास कोई भी पिक्चर नहीं है, आपको ये बताऊं? हेमा ने बोला है कि वहाँ पे उसने रिकॉर्डिंग की थी। नहीं ये अगर कोई भी ऐसी बात है तो आप मेरा मोबाइल अभी ले लीजिए, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं। मैं तुझे कुछ कहने के लिए मैं तुम्हें बोला तो सही, हेमा के पापा से मिलने में क्या दिक्कत है? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, हेमा के पापा के साथ में मिलूंगा और तेरी बीवी के साथ में मिलूंगा। अभी पहली चिट्ठी में तेरी बीवी को ये खबर पहुंच रही है। नहीं वो आप देखो, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्यों ना करूं? नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक छोटी सी चीज में भी आप मुझे बर्बाद कर सकते हैं, मुझे पता है। तो मैं क्यों ना करूं बर्बाद? तूने मुझे बर्बाद किया, तूने आप मेरे से एक बार मिलिए तो सही, मैं आपको अरे तेरी कोई स्टोरी, मैं आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी ऑफ योर स्टोरी। मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। अरे क्षमा रख, ये हाथ है ना पीछे, तेरी क्षमा घुसेड़ के रख, मैं तेरी कोई क्षमा नहीं सुनने वाला, बराबर। तूने मेरा घर तोड़ा, मैं सामने तेरा घर तोड़ दूंगा, तेरी नौकरी तोड़ दूंगा, एज सिंपल एज दैट। उसके सिवा तुझे पता था हिमा मैरिड है, उसके बावजूद तूने उसको कॉल किया। देखिए उसके कॉल करने के बावजूद तूने उसको घर पे बुलाया, और उसका हेमा का रिटर्न स्टेटमेंट अभी मेरे पास है, बराबर। हेमा ने मुझे अभी जो चीज बोली है वो सब कुछ लिख के दे दी है। नहीं लिख के दे दिया होगा, वो मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि बस मैं आपसे एक बार मिलना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि आपको मतलब पता चलेगा कि मेरा कोई वो ही नहीं है, मतलब आप जो कह रहे हैं कि कोई ईगो है, कोई ये है, कोई वो, कुछ नहीं है।
मैं बस आपसे एक बार मिलके आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ हुआ है। अगर आपको तो- ऐसा कुछ हुआ है, अगर अगर क्षमा में अगर कहाँ से आया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जो भी हुआ है आप जो भी उसके नहीं, लिए क्या मुझे हुआ है? जो भी मतलब आपको जो लग भी रहा है कि नहीं, हम- जो भी का मतलब क्या हुआ है? न्यूज रूम तू मतलब क्षमा किस आपको लिए लग मांग कि रहा हम है? मिले और मिलके ऐसा हुआ है। नहीं, ठीक है। क्षमा किस लिए? अरे ऐसा क्या हुआ? न्यूज रूम मतलब गुजरात। आपको जो लग रहा है, बाकी हम तो बस मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई कंप्लेन के लिए मेरे से मिले। अब ये अभी तो अब मेरे अब गया तू नहीं, तू देखिए, तू तू ना सीधी उंगली से तेरी ये उंगली तेरी ना टेढ़ी करनी पड़ेगी, तभी जाके तू मानेगा। ध्रुव जी, मैं तो आपके पैरों में गिर जाऊंगा, मैं आपको बता अरे रहा हूँ। मेरे मेरे पैरों में क्या गिरने की जरूरत है? तेरी बीवी के पैर में गिर तो शायद वो तुझे माफ कर दे, वो तू क्षमा दे। नहीं, हेमा का वो फादर तो मुझे क्षमा दे। उसके पैरों में भी गिरना तुम्हें- पड़ेगा, आपके में भी तुम्हें गिरना पता पड़ेगा। है? अब मैंने तो मान लीजिए मेरे- हेमा का डिवोर्स होगा ना, हेमा का डिवोर्स होगा ना, तो उसका बाप तुझे मार डालेगा। नहीं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। मेरे को देखो, मेरे को तकलीफ तो आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा आप ये बताइए, मैं आपको बस एक इंसानियत के नाते भी कह रहा हूँ कि हमसे गलती हो गई। अब हमसे गलती हो गई तो ये गलती आप यहीं पे हमें सजा दे सकते हो। न्यूज रूम गुजरात। तेरी सजा तेरी नौकरी जाए, तूने ये नौकरी के पावर पे किया है। नहीं, बराबर। बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं, तेरी नौकरी के नौकरी के पावर से पावर- आज अबे तक कोई चुप। काम नहीं किया मैं। चुप चुप हो जा। ये सब कुछ तूने नौकरी के पावर पे किया है। नहीं, मैं अगर ये हूं न मैं फलाना हूं न मैं ढिमका हूं न भी नहीं है तेरी। मैं तो तेरे कुछ भी तुझसे नहीं मैं हूं। मेरे घर का टॉयलेट ना धुलवाऊं ना तो मेरा नाम नहीं। आजा तू मेरे घर पे मेरा टॉयलेट धोने पहले। मैं आप जो कहोगे वो करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार मुझसे मैं तुझ पे भरोसा नहीं करता मिलने के लिए, तो मैं आई फिक्स द प्लेस। मैं तो तेरे पे कॉल आएगा, तो चिंता मत कर मिलने के लिए। नहीं, और आज तू ऑफिस आपको किस ना चीज का भरोसा नहीं है ये बताइए। वर्दी मैं चढ़ा के मैं क्या ऑफिस कहूँगा, मत जाना। वर्दी बहुत दिनों नहीं टिकने वाली। वर्दी चढ़ा के मैं- ऑफिस मत जाना। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आपको क्या लंबी लगता है, मतलब इंक्वायरी आप- चलने वाली है। सारे सबूत इकट्ठे है। लंबी वो- इंक्वायरी चलने वाली है। तू लंबा कटने वाला है। तूने वो- मेरी गृहस्थी में आग लगाई है एंड यू विल पे द प्राइस फॉर इट। और तू मेरा फोटो रख के तेरी सात पुश्ते पूजा करेंगे कि मैंने क्या गलती कर दी भैया। तू हर एक जगह पे हर एक स्त्री में मैया मैया बोलेगा। न्यूज रूम गुजरात। क्या नहीं, वो बोलेगा? तो- न्यूज रूम गुजरात। पुलिस की जॉब क्या होती है? न्यूज रूम गुजरात। कुछ ऐसी कोई गलती नहीं होगी ध्रुव जी, मैं आपसे बता रहा हूँ। अबे आप अबे चुप हो जा। मुझे पता है तू क्या करने वाला है। तुझे मौका मिले ना तो तू कुछ नहीं, आप कुछ भी बोले, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आप मैं एक तेरी बार मेरे माफी को आप बता दीजिए कि accept- कहाँ आना है, मैं अकेले आऊंगा। मैं अरे तू अकेले? व्हाट डू यू मीन बाय अकेले? न्यूज रूम अकेला मतलब आप जो कह रहे हैं तू ना कि एक मिनट, तू कहीं अकेले भी पहुंच अकेले सकता- कौन गुजरात। है? क्या कहीं भी अकेले का पहुंच मतलब सकता क्या? है, तो आप तू कह रहे हैं ना, तू क्या कोई मैं- गैंग लेके आना है? तू क्या तू अहमदाबाद में है? तू ये सोच के रख। बराबर? मैं वही तू कह रहा हूँ कि- अहमदाबाद में है। तू कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं है कि मैं अकेला आऊंगा। है अरे, तू क्या 100 जनों की फौज लेके घूमता है? अरे नहीं, आप कह रहे थे कि कहीं भी आ जाओगे आप, तो ऐसा है। पर मैं अकेला आपसे आऊंगा बताऊं, आप मैं। तू अपने आप को चर्बी अबे तुम लोगों की इतना कुर्सियां जाएगी ना तब लोगों की। यू आर नॉट अबाउ द लॉ। नहीं, हम तो कोई भी अबव दी लॉ तो क्या, हम तो आपसे भी ऊपर कुछ अच्छे भी अच्छे नहीं है, हम चीफ तो किसी मिनिस्टर से भी चले ऊपर- गए लड़कियों के चक्कर में। अच्छे अच्छे होम मिनिस्टर चले गए और अच्छी अच्छी सरकारें पलट गई। अच्छे अच्छे राजे महाराजे लड़कियों के चक्कर में चले गए। तू चीज क्या? न्यूज रूम गुजरात। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। आप ध्रुव जी एक बार मेरे को मौका मुझे दीजिए आपसे मिलने का। अरे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अभी मेरा ना रूम गुजरात। खत्म हो गया। मैंने तुझे जो मैसेज कन्वे करना था, मैं तुझे फिर से कॉल करूंगा। कब? तू फर्स्ट रिंग में उठाएगा। ऑफिस नहीं जाएगा तब तक। बराबर? जब हेमा का फादर आएगा ना तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा। बराबर? और तब तू ना पहली सवारी पे आ जाना। बराबर? गुजरात। वहां पे आई मेक श्योर कि तेरी बीवी भी प्रेजेंट रहे। तो तुझे ना
मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूँ कि तुझे तेरी बीवी को बताना है ना, तो अभी दौड़ के बता दे कि भाई मेरे से ये गलती हो गई है, कन्फेस कर ले, वरना तेरी बीवी के पास ना ये सारी चीजें सबूत के साथ जा रही है। जी जी हैं? तू अभी के अभी हो सके ना तो तेरी बीवी को, तेरी बीवी को जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें बताना, तुझे आराम से तू बता दे, बराबर न्यूज़ रूम गुजरात जी। न्यूज़ रूम बराबर ना, वरना तो वो आईएएस है ना तेरी। न्यूज़ रूम गुजरात ध्रुव जी प्लीज, वरना ना बहुत आईएएस कपल और आईपीएस कपलों को क्या हुआ है, वो कुत्ते घुमाने चले गए थे, सस्पेंड हो गए, चले रवाना हो गए दिल्ली के स्टेडियम में। ध्रुव जी देखो प्लीज मेरी लाइफ खराब मत करो आप। तेरी लाइफ खराब तूने की है, मैंने नहीं की है। नहीं वो मैंने ही कुछ मैंने ही गलती की है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तेरी Please, लाइफ ध्रुव तूने जी, खराब की है, मैंने कहाँ पे खराब की है? मैं कोई पिक्चर में ही नहीं आया था, तूने मेरी बीवी पे हाथ डाला तब जाके मैं पिक्चर में आया। नहीं बिल्कुल, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ। प्लीज प्लीज मेरा पैर पकड़ या थोड़ा- मेरा पकड़, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। न्यूज़ रूम प्लीज ध्रुव जी प्लीज। न्यूज़ रूम गुजरात मैं तुझे इतना ही बोल रहा हूँ कि तेरी बीवी आईएएस हो या आईपीएस हो या आईएएस हो, क्या भी कुछ भी हो, उसके डेस्क पे ये भी कच्चे चिट्ठे जाएंगे तो वो भी तो अनपढ़ तो नहीं है ना, वो तो जोड़ सकेगी ना 1+1 2। प्लीज ध्रुव जी देखो मेरी लाइफ खराब मत करो प्लीज। अरे तूने मेरी खराब की और तू किस मुंह से मुझे बोल रहा है कि मैं तेरी खराब ना करूं? देखो आप बड़े इट आदमी डज हैं। नॉट वर्क दैट वे। ये वन वे स्ट्रीट नहीं है, इट इज अ 2-वे स्ट्रीट। नहीं आप बड़े आदमी हैं, लाज जाटड़े, आप प्लीज मेरे को मैं माफ क्यों- कर मैं दीजिए भी- और मैं आपको क्यों बड़ा वचन आदमी देता होने हूं कि लगा? मैं आज के बाद कभी भी किसी भी कोई ऐसे गलत काम में नहीं पड़ूंगा। अरे कोई किसी गलत काम, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे तू तेरी बीवी और हिमा के फादर के सामने हाजिर हो जाना। प्लीज देखो, प्लीज ध्रुव जी मेरे को माफ कर दीजिए प्लीज। मैं माफ नहीं कर रहा हूँ, एंड ऑफ द Please. स्टोरी। प्लीज ध्रुव जी प्लीज। मैं माफ नहीं कर रहा हूँ, एंड ऑफ द स्टोरी। मैंने बोला तो सही, तू कितना भी Please. प्लीज कर ले, मैं तुझे माफ नहीं कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें ये भी बोल रहा हूँ, ऑफिस के चक्कर काटने बंद कर देना, गलती से भी ऑफिस की साइड मत निकलना। प्लीज ध्रुव जी प्लीज, और उसको बोलो फोन, इसका फोन मेरे पास ही है। न्यूज़ रूम गुजरात प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए और हेमा का फोन, ये सब कुछ मेरे पास है, बराबर। तो तू ना अभी उसको चढ़ाने के लिए पीछे से किसी से कॉल करवाए, तू कॉल करे या फिर ब्लैकमेलिंग, और ये सब कुछ नहीं चलने वाला अभी तेरा। नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, बट प्लीज बराबर। मेरे को माफ कर तूने दीजिए। ऑलरेडी जो करना था ना तो तू कर चुका है, अब मुझे जो करना है मैं करूंगा। प्लीज ध्रुव जी प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए। अरे Please. तो पहली गाड़ी पकड़, मुझे तू बता दे कि अभी मैं मेरे गांव चला गया हूँ, पहली गाड़ी पकड़ के रवाना हो जाए, अहमदाबाद खाली कर दे। अहमदाबाद में मैं रहूंगा या तू रहेगा? मैं अहमदाबाद में देखिए हूँ ही नहीं, अहमदाबाद में तो वैसे भी अहमदाबाद नहीं रहता, गांधीनगर रहता हूँ। तो आप कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा, बट मैं ये तू कह रहा हूँ रायसन रहता है, बराबर। न्यूज़ रूम गुजरात प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए। तू रायसन रहता है, क्यूसीना के सामने। मैं तेरे घर कल आके गया, बराबर। जी जी हाँ, तू ऐसा मत समझ कि सब कुछ मैं सब कुछ लेके आया, लेने भी आया तो सब कुछ मैं, तू काट रहा है सबके। अब तो तेरी मैं जो लूंगा ना, तू जीवन भर याद रखेगा कि मैंने 2019 से ये सब कुछ चल रहा है तेरा। न्यूज़ रूम 5 साल से किसी का शारीरिक शोषण कर रहा है तू। न्यूज़ रूम गुजरात कितने साल हुए? न्यूज़ रूम गुजरात जो भी मैंने ऐसा शारीरिक शोषण वगैरह कुछ नहीं किया है, ये आपको बता रहा हूँ। मैंने बस आप इनसे भी तो ये पूछिए, मैंने इनका ये 2-3 केस में मेरे से मिली थी जब मैं वहाँ पे था अहमदाबाद में, मैंने इनकी उसमें मदद की थी। इनको कुछ बंदोबस्त वगैरह जीटीयू में चाहिए था, तब मैंने इनको वहाँ से दिलवाया था। फिर इसके बाद इनको कोरोना हुआ था, मैंने इनको हॉस्पिटल वगैरह अरेंज करवाया था। बस ये अरे बाकी कोरोना कोई- होते तो मर जाती, तेरी कौन सी सगी लग रही है? तूने फ्री में थोड़ी ना करवाया था। अब वो तो कोई भी, हमको तो इतने लोग फोन करते, हमने अरे इतने लोगों अरे को। बंद कर ये शांड पट्टी बंद कर। तू अपने आप को सरकार मत समझ। न्यूज़ रूम नहीं मैं तू मैं चवन्नी आपको है। सरकार नहीं समझ रहा, बट
बाई चांस हमारा कोई कांटेक्ट था इसलिए हमने ये कर अरे दिया। तेरा कोई कांटेक्ट अब नहीं रहने वाला। नहीं नहीं, वो तो अब नहीं रहने वाले, पर मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये जो चीज है 5 साल कि- से तूने किसी लड़की का शारीरिक शोषण, कि शादी करूंगा, मेरी बीवी को मैं डिवोर्स दूंगा, ये सब नाटक तू कर रहा था ना। मैं क्यों ऐसा करूंगा ये बताइए। तू क्यों नहीं करेगा ये बता। कि मैं ऐसा तेरे फ्लैट में तूने रात को 8 बजे बुलाया, क्यों बुलाया बता? राखी बांधने? मैं वही आपको कह रहा हूँ कि मैंने इस काम के लिए नहीं बुलाया, आपको बता रहा हूँ। तेरी कोई बात में मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं तुझे मिलना नहीं चाहता, समझ रहा है? कि तेरे में ये सारी चीजें करने की हिम्मत है, लेकिन तू नामर्द है, तेरे में बोलने की हिम्मत नहीं है। तू ये सब कुछ छुप छुप के कर रहा है पर्दों के पीछे, बराबर? तेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं है। नहीं ध्रुव जी, देखो मैं आपके पास आ जाता हूँ, आपसे माफी मांग लेता हूँ कि अगर आपको ये है कि मैं आपकी बीवी से बात कर रहा था, आप देख लीजिए कोई ऐसा हो कि मैं आपकी बीवी इनसे रोज बात कर रहा था, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, भले आप कोई भी रिकॉर्ड देख लीजिए, 2-5 महीने में भी हमारी एक बार बात नहीं होगी। क्यों? व्हाट इज द पर्पस 2-5 महीने में? न्यूज़ रूम गुजरात। नहीं बता रहा हूँ आपसे कि कोई बात ही नहीं पर्पस, होगी, व्हाट इज ऐसा- द पर्पस? न्यूज़ रूम गुजरात। तू होता कुछ कौन है है ही उसका? न्यूज़ रूम गुजरात। न्यूज़ रूम गुजरात। कुछ है ही नहीं, हमारा बात करने का पर्पज है ही नहीं। मैं वही तो कहा पर्पस नहीं था तो क्या था? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इन्होंने मेरे को कॉल किया कि ऐसा ऐसा कुछ मैटर है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तुम्हें ना अभी तेरी ऑफिस भी में मैं जा रहा हूँ, तू ऑफिस में दिखियो ही मत मुझे। नहीं वो मैं नहीं देखूंगा, वो तो आप और कह रहे हैं, अहमदाबाद तो मैं ना वही शाम कर- तक तू छोड़ देना, अहमदाबाद, गांधीनगर, ये सब ना एरिया छोड़ देना, न्यूज़ रूम गुजरात। बराबर? मैं तेरे घर पे भी आऊंगा तो मुझे तू तेरे घर पे भी नहीं दिखना चाहिए। तू घर से कट ले, तेरे जहाँ का है राजस्थान के गांव में पहली बस पकड़ और निकल। नहीं वो मैं चला जाऊंगा, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बार हम मिल लेते हैं। देखो, मुझे कुछ आपको- नहीं मिलना तुझसे। तुम हेमा का बाप आ रहा है, हेमा का बाप तुझे अब टेकल करेगा। नेक्स्ट देखो कॉल ध्रुव जी, उसका मैं आएगा। आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपकी लाइफ भी क्यों डिस्टर्ब हो? सिर्फ अगर अरे मान लीजिए- मेरी लाइफ तो तूने डिस्टर्ब कर दी उसको वहां पे बुला के। नहीं, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। आप अरे ऐसा कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, वही कह रहा हूँ मैं। आप देखो, अपनी लाइफ को भी क्यों डिस्टर्ब करें? अपनी लाइफ भी क्यों डिस्टर्ब करें? आपका इतना अच्छी लाइफ चल रही है, आप लोगों के इतने अच्छे, आप फैमिली से आते हो, तो आपकी भी लाइफ क्यों खराब हुई बताइए? तेरी ये मेरी लाइफ तो तूने ऑलरेडी डिस्टर्ब कर दी। मैंने उनको कोई कॉल किया है तो मैं आपसे मेरी माफी लाइफ मांगता तूने हूं, but डिस्टर्ब आप कर क्यों- मेरी लाइफ सुन, मेरी लाइफ तूने डिस्टर्ब कर दी, बराबर? और उसका रिपरकशन है, तेरी लाइफ डिस्टर्ब होगी। नहीं देखो, मेरी लाइफ डिस्टर्ब होगी वो अलग है, वो तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी भी क्यों खराब हो? अरे क्योंकि ऐसा मेरी कुछ क्यों हुआ- चिंता कर रहा है तू कब से मेरी चिंता करने लगा? ट्यूसडे को जब तूने कॉल करके बुलाया था तब तूने मेरी चिंता की थी। पर ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसकी वजह से मैं टोच आपको- दूंगा। हाँ, अभी तुम्हें न्यूज़ रूम झूठ बोलना बंद कर दे। न्यूज़ रूम देखो, गुजरात। मैं तुम्हें मैं टोच झूठ नहीं दूंगा। बोल मैं रहा। तू मैं मेरे आपको- मेरे मुंह से ना अभी तू और गालियां सुनेगा। देखो, मैं ध्रुव जी, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको आप बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, अरे तेरे कुछ बच्चे है ही मर नहीं। जाएंगे बीमारी में 2 महीने के अंदर। झूठी कसम मत खा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ रिलेशन। अरे लड़की ने रिटर्न में लिख के दिया है। अब वो देखो, रिटर्न में लिख के दिया है, वो किस लिए लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है, मुझे नहीं पता, पर मैं हाँ आपको नहीं तुझे मैं बता रहा हूँ। अरे हेमा ये देख, ये तो रिफ्यूज कर रहा है। आप इनसे पूछिए कि हमारे कोई फिजिकल रिलेशन है, अभी हुए हैं क्या? आप बताइए। न्यूज़ रूम गुजरात। अभी हुए मतलब? न्यूज़ रूम गुजरात। मतलब अभी हुए हैं क्या फिजिकल रिलेशन? आप जो कह रहे हो ना कि अभी मिले हैं, आप हमारा कुछ है क्या, ऐसा बताइए आप। तो ट्यूसडे को तूने उसको तेरे घर पे क्यों बुलाया था? वही कोई मैटर था, इसलिए वो आई थी, मैं मैटर आपको ऑफिस बता- में क्यों? अरे कार चुप। एक तो आया है, कौन से कोटा में तेरा एडमिशन हुआ है?
यहाँ पे नहीं, वो तो पास हुआ था कि 40 मार्क पे आ गया है तू? हाँ हाँ, वो तो 40 मार्क पे 40 मार्क वाला है ना? आप जो भी कहें वो ठीक है। 40 मार्क 100 में से 40 में तू डॉक्टर बन जाए, वही है ना तू? न्यूज रूम गुजरात। नहीं, आप जो भी कहें वो सही है, पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप प्लीज अपनी लाइफ भी डिस्टर्ब मत कीजिए। और मेरी आप लाइफ एक बार मेरी मेरे लाइफ को तो मिलने तूने का मौका डिस्टर्ब कर दीजिए, दी। मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा। ठीक है? मुझे तेरी कोई झूठी स्टोरी नहीं सुननी। तेरे में इतना भी झूठी- एथिक्स होता ना तो तू ये आज तक ये सारी चीजें नहीं होती, समझा? जो बंदी तेरे पास कुछ काम लेके आई होती ना, उसके साथ ये तेरी एथिक्स होती ना, तू तेरी बीवी को ही चीट नहीं करता सबसे पहले। नहीं, और ऐसी तो तूने कितनी लड़कियों को कितनी लड़कियों को मिला होगा। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने चीट किया ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, आप मतलब आप मेरा भी विश्वास कीजिए, तेरा विश्वास हेमलता मुझे का भी नहीं करना। विश्वास कीजिए। नहीं आपको- करना। नहीं, फोन रख आपको अभी, भी- फोन रख। मेरे आप- पास तेरे जैसे फालतू चवन्नी से बात करने के लिए फोन है नहीं। और अभी इस पे मैं जब तक कॉल ना करूँ ना, कॉल मत करना। और मैं तुम्हें अभी भी तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, अहमदाबाद गांधीनगर छोड़ दे और चला जा। मैं तुम्हें बुलाऊंगा, हेमा के फादर आ रहे, तब तू वहां पे तेरी मुंह दिखाई की रस्म कर देना। नहीं, वो मैं आ ये जाऊंगा, हर्ष वो संघवी के आप- पास मैटर जा रही है। वो देखो, मैंने वही बोला ना, आप तो लोकल हो, आपके खूब सारे नेटवर्क हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप खूब कैपेबल हो, बट मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और आप ऐसा तू तेरे होम मिनिस्टर को बता देना, तेरे होम सेक्रेटरी को बता देना, बराबर? मुझे कुछ निस्बत नहीं है। मैं उनको जो बताना है मैं बताऊंगा, बराबर? तुझे उनको जो एक्सप्लेनेशन देना है तू एक्सप्लेनेशन देना, बराबर? ठीक है। और फोन रख, मेरे पास टाइम नहीं है चवन्नी। देखिए, अब मैं आपको बस एक बात कह रहा हूँ कि हम लोग मिल लेते हैं। मुझे नहीं मिलना तुझसे। मैंने तुम्हें बोला ना, मिलना हो तो 2 जनों की हाजिरी में मैं तुझे मिल सकता हूँ। एक है तेरी बीवी और दूसरा है हेमा का फादर। दोनों के हाजिरी में आई एम रेडी टू मीट यू। और तू मुझे जो एक्सप्लेनेशन देगा मैं सुनूंगा, लेकिन इसके बिना मैं तुम्हें नहीं मिलने वाला। वो ठीक है, पर मैं वही कह रहा हूँ कि आप मिलेंगे, मैं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दूर हो अरे जाएगी। तू तेरी बीवी की मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचना ना, उसको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसके बारे में सोचना शुरू कर दे, बराबर? तू मेरे बारे में मत सोच, मेरी तो क्लियर हो गई। मैंने आई एम कैपेबल इनफ। मैं तेरे जैसा 100 में से 40 मार्क पे डॉक्टर बनने वाला नहीं हूँ, नहीं, वो मैं बराबर ना? मैं 100 में से 100 मार्क वाला हूँ। तो तू तेरे और मेरे में ना जमीन आसमान का अंतर है। जी 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 समझे? जी जी हैं? मैं समझ गया, पर मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक अब बार please फोन मिलिए। रख दे। मैं जो आप- बोलो डू एज डायरेक्टेड। फोन रख, आप ध्रुव जी एक बार प्लीज मिल लीजिए। फोन काट। और इस पे जब तक ये हेमा का फोन में अभी मेरे पास है, बराबर? तो उसको फैन कॉल मैसेज केयूर भाई को इसको कुछ मत मार कर तू, बराबर? आप चुपचाप एक बार अपनी मिल लीजिए। उंगलियों को बैठ जा। आप एक बार मिल लीजिए प्लीज। नहीं मिलना तुझे। हेमा का फादर आएगा, मैं तुम्हें बोल दूंगा, तू आ जाना। चल, तेरा मिलना मैं तुझे मिल लाऊंगा, बराबर? हेमा का फादर आएगा, वो आ रहा है, ही इज ऑन हिज वे, बराबर? मैं बुलाऊंगा, तब तुझे मिलने का शौक मैं पूरा कर दूंगा। एक बार हम उससे पहले मिल लेते हैं और ध्रुव जी, उसको बोलो कि अगर तुम्हारी वाइफ को मिलना है ना तो आइए, इसका नंबर थोड़ी कहीं से मिल जाता है। प्लीज ध्रुव जी, एक बार हम उससे पहले मिल लेते हैं। अरे देख, तेरी वाइफ ना पब्लिक पोस्ट पे है, तो ऐसा मत सोच कि मुझे ना उसका नंबर मिलने में या फिर उसके अंदर 2 मिनट लगेंगे। आपको नंबर आप मेरे से बोलेंगे, मैं उसका नंबर दे दूंगा आपको, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बट दे मैं दे। कह रहा हूँ- ला मैं कह रहा हूँ कि एक बार नंबर ला। एक बार हम लोग मिल लेते हैं एक बार। मुझे तुझसे एक बार मिलना ही नहीं है। मैं तुझसे एक बार भी नहीं मैं मिलने आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एक बार मिल लेते हैं। अरे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, नाउ आई विल डिसाइड। तू कुछ डिसाइड नहीं करेगा तेरे लाइफ में नहीं, क्या वो होगा। तो तेरे ठीक लाइफ है, में आप क्या ही होगा ना, मैं डिसाइड करूंगा।
देखिए आप ही डिसाइड करेंगे, पर प्लीज एक बार मिल लेते हैं। मतलब मैं तो रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ आपसे, डिसाइड तो आप ही करेंगे, पर रिक्वेस्ट डिनाइड। न्यूज रूम गुजरात। प्लीज प्लीज ध्रुव जी ऐसा मत कीजिए प्लीज। एक अबे बार मिल नीले चट्टे, रिक्वेस्ट डिनाइड। अभी नीले कलर का झंडा लगे, घूम। प्लीज ध्रुव जी देखिए, प्लीज एक बार मिल लेते हैं प्लीज। मुझे हेमा का फादर, चल तू फोन रख अभी। પ્લીઝ ધ્રુવજી અમે એકવાર મિલ જો અત્યાર સુધી રાજ્યની અંદર અનેક વખત આ પ્રકારની ઘટનાઓ બની ચૂકી હશે, પરંતુ સામે નહીં આવ્યું હોય। જો કે પહેલી વખત એ પ્રકારની ઘટના બની છે કે એક મહિલા એડવોકેટ જે છે તેણે પોતાના પતિને આખી વાત કરી અને એક અધિકારી સામે આ પ્રકારની કાર્યવાહી જે છે તે કરવાની માંગ કરી છે। જો કે આ કાર્યવાહીના લેટર જે છે તે રાજ્યના ગૃહ રાજ્યમંત્રી સુધી પણ પહોંચાડવામાં આવ્યા છે। ખેર હવે જોવાનું રહેશે કે આ અધિકારીને ત્યાં સુધી વાત પહોંચાડી છે કે તેને સજા થવી જોઈએ, પરંતુ હજી સુધી આમાં કોઈ કાયદાકીય કાર્યવાહી નથી શરૂ થઈ। રાહ એ પણ જોવામાં આવી રહી છે કે આઈપીએસ અધિકારી છે એટલે સીધું તેમની ઉપર કેવી રીતે આરોપ લાગવામાં આવે। ક્યાંક એવું પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આઈબીના અધિકારીઓ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે કે આ સંબંધો હતા કે કેમ। જો એની માહિતી એમને મળશે તો ક્યાંક તપાસના આદેશો પણ જે છે તે આપવામાં આવશે। આપનું શું માનવું છે આ અધિકારીઓને લઈને કે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા હોઈ શકે કે કેમ, એ આપ અમારા કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જરૂર જણાવજો। અમારી ચેનલ ન્યૂઝ રૂમને આપ આજે જ લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।